નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું લોકમંચમાં. અને લોકમંચમાં આજે વાત કરીશું કર્ણાટકની, કારણ કે તમે જુઓ કર્ણાટકમાં રાજકીય સોગઠાબાજી ગોઠવાઈ ગઈ છે અને ચૂંટણીનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે. અને હવે લગભગ એકાદ સપ્તાહ બાકી છે જ્યારે ચૂંટણીને લઈને, ત્યારે રેલીઓ, સભાઓ, રોડ શો રાજકીય પાર્ટીઓ બહુ જ કરી રહી છે. અને ખાસ તો આ રાજકીય પાર્ટીઓ જે કર્ણાટકના જે મૂળભૂત મુદ્દા છે, એ મૂળભૂત મુદ્દાની નો ડાઉટ પહેલાં એક શરૂઆત થઈ હતી કર્ણાટકમાં, પણ હવે જોઈએ ને તો ક્યાંક વિવાદિત અને ભડકાઉ ભાષણે આ મૂળભૂત મુદ્દાઓનું સ્થાન લઈ લીધું. એ ચાલ્યું, ત્યારબાદ હવે બજરંગબલી ને લઈને પણ ક્યાંક રાજનીતિ થઈ રહી છે. કારણ કે જ્યારે કોંગ્રેસે કર્ણાટકમાં ઘોષણાપત્રની જે જાહેરાત કરી અને એમાં એમણે કહ્યું કે અમે પીએફઆઈ અને બજરંગ દળ ઉપર પ્રતિબંધ મૂકીશું, આવું એક વચન આપ્યું. એટલે કોંગ્રેસે એમ પણ કહ્યું છે કે ધર્મના નામે જે નફરત ફેલાવી રહ્યા છે એની સામે અમે કાર્યવાહી કરીશું. ભારતીય જનતા પાર્ટીને આટલું જોઈતું હતું અને મુદ્દો પકડી લીધો. અને ખાસ વડાપ્રધાને તો કોંગ્રેસના મુદ્દાને રેલીઓમાં પોતાનો મુખ્ય મુદ્દો બનાવી લીધો. અને ચૂંટણી પ્રચાર વચ્ચે હવે ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે ચાલી રહી છે બજરંગબલીની લડાઈ. અને ભાજપને જો સત્તા પર આવવું હોય કર્ણાટકમાં તો મોદી ઉપર મદાર રાખવો પડે. અને વડાપ્રધાન મોદી હવે રણ મેદાનમાં, ચૂંટણી મેદાનમાં છે. આમ તો આ વર્ષે જ 8 વખત એમણે કર્ણાટકની મુલાકાત લીધી છે. અને ચૂંટણી સભાઓમાં વડાપ્રધાન કહી પણ રહ્યા છે કે પહેલાં કોંગ્રેસને ભગવાન રામથી તકલીફ હતી, હવે બજરંગબલીથી તકલીફ છે. મને ઝેરીલો સાપ કહ્યો ને સાપ તો શિવજીના ગળામાં શોભે છે. આવું વાત પણ ક્યાંક કરીને એમણે કહ્યું કે કોંગ્રેસ બજરંગબલીને ક્યાંક જેલમાં નાખવા માંગે છે. અને ખાસ ભાજપે સામે જે ચૂંટણી ઢંઢેરો બહાર પાડ્યો એમાં સમાન નાગરિક સંહિતાનું એક વચન આપ્યું છે. અને કર્ણાટક વિધાનસભાની ચૂંટણી અને એના પરિણામ 10 તારીખે જ્યારે મતદાન છે અને 13 તારીખે જ્યારે એના પરિણામ આવવાના છે, ત્યારે આ પરિણામો જે રાષ્ટ્રીય રાજનીતિ છે એના કયા સમીકરણો બદલશે, અને બીજું 2024 લોકસભાની ચૂંટણી પર આની સીધી અસર કેવી રીતે પડશે. કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે સાઉથનો ગેટ કહેવાય છે કર્ણાટક. કોણ આમાં બાજી મારે છે અને શું પરિસ્થિતિ છે કર્ણાટકની, ચર્ચા કરવા માટે મારી સાથે જોડાયા છે બે વરિષ્ઠ પેનલિસ્ટ છે અને નેશનલ લેવલે જે પોલિટિકલ એનાલિસ્ટ છે એવા રાજકીય વિશ્લેષક હર્ષવર્ધન પાંડે મારી સાથે છે. હર્ષવર્ધનજી, સ્વાગત છે આપનું. नमस्कार। સાથે જ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजय तिवारी हमारी साथ जोड़ा है. अजय जी, आपका भी स्वागत है. जी अजय जी, जिस तरह मैंने बात की कि कांग्रेस और भाजपा अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और कांग्रेस ने जो बात रखी कि बजरंग दल और पीएफआई पर हम प्रतिबंध लगाएंगे, बीजेपी के जो नेता है वही मुद्दा लेके अब चुनावी मैदान में है, रेलियों में बोल रहे हैं. और उन्होंने तो ये भी कहा कि अगर हमारे हनुमान भक्त भड़के तो कांग्रेस का सफाया हो सकता है. क्या लगता है, चुनावी मुद्दा जो समस्याएं हैं वो मुद्दा कहीं डाइवर्ट हो रहा है? क्या लगता है, कैसी राजनीति चल रही है अभी कर्नाटक में? दिलीप जी, आपको नमस्कार करते हुए पांडे जी को नमस्कार करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के 150 करोड़ जनता को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं. और गुजरात की जनता तो वैसी ही बहुत अच्छी है. इन सारी गुजरात की जनता को मेरा हार्दिक नमन और सादर प्रणाम. जी, कमाल है, बेमिसाल है. कमाल भी है, बेमिसाल भी है ये देश हमारा. अच्छा. इस देश में, लोकतांत्रिक देश में, किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोलने की आजादी है, कुछ भी लिखने को आजादी है. ऐसा नेता कब लिख जाता है जब मालूम होना चाहिए कि इस भारत देश में भगवान राम, पवन हनुमान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश, इस हिंदुस्तान की धरती पर ब्रह्मा विष्णु महेश के बगैर कुछ नहीं चल सकता. राम और हनुमान और हर देवता के बगैर नहीं कुछ चल सकता. चाहे वो मुसलमान का पीर पैगंबर हो, चाहे वो क्रिश्चियन का ईसा मसीह हो, चाहे वो सिखों का गुरुद्वारा और गुरु गोविंद सिंह हो, अगर कुछ नहीं चल सकता तो उसके नाम की चर्चा करना भी इस देश के साथ गद्दारी करना है. हृदय में आस्था होनी चाहिए, हृदय में भावना होनी चाहिए. और वह किस किंधा
तो उत्तर प्रदेश के राम और किष्किंधा के हनुमान ऐसे चित्त को छलने का काम करना। यदि आपको बजरंग दल पे पीएफआई की तरह रोक लगाना ही था, पीएफआई पर रोक लगाना ही था, तो बजरंग दल के उन उपद्रवियों को, बजरंग दल के या पीएफआई या किसी भी संस्था के उन उपद्रवियों को बंद करके ठुकाई करने का काम इस देश के कानून का है, इस देश के प्रशासन का है। लेकिन मैनिफेस्टो में लिखना कि आप हनुमान के भक्तों को, जो भक्त उपद्रव कर रहे हैं, उसे जेल में डालो ना, बंद करो ना। हनुमान के भक्त के नाम पर उस बजरंग दल के चलाने वालों को आप बजरंग दल बंद कर देंगे, राम दल बंद कर देंगे, ये ठीक बात नहीं है। और इसी मौके को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा मुद्दा उठाया जिससे आज कांग्रेस धाराशाही हो रही है। ये मुद्दा नहीं है आदरणीय दिलीप जी। कब तक इस देश में जातियों के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा? कब तक इस देश में भगवान के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा? कब तक इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के विरोध में चुनाव लड़ाया जाएगा? कर्नाटक में 15 लाख से ज्यादा प्रवासी रहते हैं, जो अन्य राज्य से जाकर के वहां काम करते हैं। वह भूखमरी पे भी आ जाते हैं, उनको मारा भी जाता है, उनको बंद भी किया जाता है, उनको काटा भी जाता है, हिंदी बोलने पर उनको पीटा भी जाता है। उस समय सरकार क्या करती है? मुझे तकलीफ है कि भारत देश की राष्ट्रभाषा ही तय नहीं है। बिल्कुल। भारत देश की राष्ट्रभाषा क्या होगी? विपक्ष और पक्ष, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने पिछले 70 सालों में भारत देश की राष्ट्रभाषा ही नहीं तय की है। ये क्या है? इस देश को क्या हो गया है? अच्छा, बिल्कुल लगता है आपको अजय जी कि जो मुद्दे थे, भ्रष्टाचार था, रोजगारी थी, बेकारी थी, ये सब मुद्दे थे, अब ये मुद्दे डाइवर्ट हो रहे हैं और पूरा राजनीति धर्म की ओर जा रहा है। साहब, ये डाइवर्ट हो गए हैं। आज किसी को यह चिंता नहीं है, या किसी को चिंता नहीं है इस देश को समरसता में लाने की। समरसता है ब्राह्मण और शूद्र जब साथ बैठ के खाए, ब्राह्मण और शूद्र जब एक साथ एक राज्य सरकार में एक अधिकार के लिए अपनी समरसता को दिखाए। कमाल है, कहीं को आरक्षण में बांट दो, किसी को भगवान में बांट दो, किसी को अल्लाह में बांट दो, किसी को सिख गुरुद्वारे में बांट दो और चुनाव लड़कर के चुनाव जीत जाओ। इस देश को हो क्या गया है? चलो, इसी को राजनीति कहते होंगे शायद अजय जी। वो सबसे बड़ी परेशानी कर्नाटक में खाने की है। खाना नहीं मिल रहा है। कर्नाटक का वह केला सूख रहा है, कर्नाटक का वह नारियल सूख रहा है। इस बात को किसकी चिंता है? किसी को नहीं। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, या नहीं सोच रही है कि यह देश के लोग कैसे भूखमरी से, कैसे बेरोजगारी से निजात पाएंगे। बस वो यह सोच रही है कैसे हम जीतेंगे। चलो, इसी को राजनीति कहते हैं अजय जी। जिस प्रकार हर्षवर्धन पांडे जी, मोदी जी अब जैसे ही कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, रैली को संबोधन करते हैं, तो भाषण की जो शुरुआत करते हैं बजरंग बली की जय से शुरुआत करते हैं। क्या लगता है, स्थानिक मुद्दे अब तक जो थे उसमें कांग्रेस की एक पकड़ थी, कांग्रेस उभरती हुई, मजबूत होती हुई दिखती थी कर्नाटक में। अब जब कांग्रेस की ओर से जहरीला सांप बोला गया, जब बजरंग दल पर प्रतिबंध लाने की बात की, इससे क्या कर्नाटक में आप कांग्रेस का नुकसान देख रहे हो थोड़ा बहुत? देखिए दिलीप भाई, एक कहानी है वो जंगल की जो है, उसमें क्या है कि एक बार शिकार करने के लिए, तोतों का शिकार करने के लिए एक शिकारी जंगल में गया। तो शिकारी ने कहा कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, तोतो फंसना मत। तो जितने तोते थे वो समझ नहीं पाए इसको, और जब शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए आ गया तो तोतों ने कहा कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, तोतो फंसना मत। उसके सामने ये कह दिया। तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस जितनी ज्यादा गलती करेगी उतनी ज्यादा पिच मोदी के लिए तैयार हुई है। और ये जो
अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कई बार कांग्रेस करती है, वही यहाँ पर हुआ है। आप ये देखें कि पहले खड़गे ने जहरीला सांप कहा, 3 दिन बाद प्रियांक खड़गे ने जो है अपने नालायक बेटे से इसको बढ़ा दिया और अब बात बजरंग बली तक जाकर पहुंच गई है। तो एक तरीके से कांग्रेस जितनी गलती करेगी उतनी ज्यादा मुझे लगता है कि यहाँ पर पिच तैयार हो गई है और ये बहुत बड़ी गलती कांग्रेस कर रही है। अभी तक आप देखिए वहां के जितने सारे मुद्दे थे उन मुद्दों में 40% करप्शन का मुद्दा था, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी और बसवराज बम्बई से बहुत ज्यादा नाराजगी है। मैं इवन आपको ये बताऊं कि वहां के जो एमएलए हैं उनसे इतनी नाराजगी नहीं है जितनी बम्बई से है। इसके अलावा बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। आप ये देखिए, ये सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको अगर कांग्रेस उठाती तो वो मैदान में बहुत अच्छा कर रही थी अभी तक, लेकिन अब ये पूरा विमर्श बदल गया है और जब जिसके बाद बजरंग बली पर जो अटैक किया गया है, इसके बाद अटैक करने की जैसे कोशिश की है, तो इसके बाद जो बहुसंख्यक हिंदू हैं उनके वोट को चोट पहुंचाने का एक तरीके से काम जो है वो इस बयान ने किया। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव आगे जाएगा वैसे वैसे मोदी जो है अपनी पिच तो तैयार हो गई है अब और बढ़िया बैटिंग होगी मुझे लगता है, और बीजेपी के सामने बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पर रहने वाला कर्नाटका की इलेक्शन है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल हर्षवर्धन जी, येदियुरप्पा थोड़े बहुत नाराज दिखते हैं, हालांकि वो नाराजगी जताते नहीं है पर दिखते हैं नाराज। बाकी सब जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो भाजपा में जुड़ रहे हैं। क्या लगता है कि भाजपा की जो स्थिति है कर्नाटक में, जो मतलब अभी दिखाई देती है, उससे कहीं बेहतर हो सकती है या कर्नाटक में कांग्रेस मैदान मार सकती है? कैसा माहौल लग रहा है आपको? देखिए, अभी तक का तो फिलहाल की जो स्थितियां हैं उनमें अभी तक, एक समय जब चुनाव शुरू हुआ था उस समय लग रहा था कि कांग्रेस के पास कहीं ना कहीं एडवांटेज है। अब लेकिन जैसे जैसे दिलीप भाई उल्टी गिनती शुरू होती जा रही है, कम दिन रह गए हैं, तो मुझे लगता है अगर यही सब चला तो कांग्रेस भी इस बात को अब समझ रही है कि अब मैदान थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसके टफ पड़ेगा, क्योंकि मोदी जिस तरीके से सभा कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके रोड शो हो रहे हैं, जिस तरीके से वो लोगों से बात कर रहे हैं। और आप ये देखें कि बजरंग दल की आपने पीएफआई वगैरह से तुलना करी और मैनिफेस्टो में भी आप इसको ले आए। आपको पता है कि जो बजरंग दल है वो एक सांस्कृतिक संगठन है। पीएफआई की बड़े पैमाने पर विदेशों से जो है वो फंडिंग वगैरह भी हुई है और जिस तरीके से वो काम कर रहा है वो किसी से छिपा नहीं है और कई लोगों पे एनएसए तक लगा है पीएफआई का। तो आप ये देखिए, आप एक उस संगठन की तुलना उससे कर रहे हैं और आप उसको अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी ला रहे हैं। तो ये देखिए एक तरीके से कांग्रेस जो है फंस गई है और मुझे लगता है कि कर्नाटका का चुनाव थोड़ा सा बदल गया है। दिलीप भाई, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है बीजेपी की यहाँ पर? जो येदियुरप्पा है वो एक बहुत बड़े चेहरे हैं, उसके पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका बहुत बड़ा संगठन बनाने में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन इस चुनाव में वो किनारे हैं। एक तरीके से दिल लगाकर जो है वो रोड शो वगैरह इत्यादि में शामिल वगैरह नहीं हो रहे हैं और चुनाव प्रचार से थोड़ा सा उतनी ऊर्जा के साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है ये जो मुस्लिम वाला अभी विमर्श हुआ है, ये जो वोटों का ध्रुवीकरण वगैरह होता है, इसकी भी बीजेपी पूरी तरह से यहाँ पर कोशिश कर रही है और वो कह रही है कि जो मुसलमानों का आरक्षण है वो हम खत्म करेंगे, वो हम ट्रांसफर करेंगे आपका वो क्लिक का और लिंगायतों में। तो एक तरीके से पूरी तरह से कोशिश हो रही है बीजेपी की कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत बीजेपी के पास ये है कि यहाँ पर कोई स्थानीय लीडरशिप नहीं है, येदियुरप्पा की बात है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर ही सारा दारोमदार है। अमित भाई शाह और नरेंद्र भाई मोदी जो है, इनकी असल चुनौती है कि कैसे वो एंटी इनकम्बेंसी को जो है अपने निजी स्तर पर निपटाते हैं। तो अब इसी को लेकर बीजेपी यहाँ पर बैटिंग कर रही है। और चलो बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, अब एंटी इनकम्बेंसी की जो बात हर्षवर्धन पांडे जी ने की, क्या लगता है कि कांग्रेस को कितना फायदा एंटी इनकम्बेंसी का मिल सकता है? और दूसरा कि वहां कांग्रेस को लेकर लोगों की ओपिनियन क्या है, क्योंकि भ्रष्टाचार एक मेन मुद्दा है। 52% लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मानते हैं कि सरकार से असंतुष्ट है, और दूसरा की बेरोजगारी है। तो ये सारे मुद्दे देखकर क्या लगता है कि कांग्रेस को जमीनी सपोर्ट कितना मिल रहा है वहां से लोगों का? देखिए आदरणीय दिलीप जी, अभी हमने पांडे साहब को सुना। पांडे साहब ने 2 बातें हमें पॉइंट की लगी। नंबर 1 की हिंदू मुस्लिम करना, यह एक पॉइंट लगा, और दूसरा ये लगा कि इस देश में भगवान के नाम को चुनना। इस दोनों बातों में साफ जाहिर होता है कि इस देश को अब चलाने के लिए हमें हर जातियों को बांट देना चाहिए और हर जाति को, जो जब से ज्यादा जाति का बाहुल्य का व्यक्ति है, या जो ज्यादा हिंदू है या जो ज्यादा मुस्लिम है, वही इस देश पर राज्य करे। आदरणीय पांडे जी से मैं कहना चाहता हूं, यह देश भारत देश है। इस देश में कितने विदेश समाहित हो सकते हैं
ये पूरे देश को पता है। चाइना के बाद अगर किसी का नंबर आता है जनसंख्या के मामले में तो इस भारत देश का नाम आता है। इस भारत देश से जातिगत, प्रांतगत, धर्मगत खेल कब खत्म होगा, इस पर राजनयिक व्यक्ति को चिंता करने की जरूरत है। जो एक्चुअल मुद्दे हैं वो वाकई कांग्रेस के पास थे, कांग्रेस ने उसे सही ढंग से नहीं उठाया और भारतीय जनता पार्टी ने एक बजरंगबली का जो मुद्दा पकड़ा है जिससे आज कांग्रेस कमजोर हुई। निश्चित तौर से इस देश में सिर्फ बंटवारे का काम करके इस देश पर सत्ता पाने वाले लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, इस देश पर सत्ता पाने के लिए किसी भी व्यक्ति और विशेष की न चिंता करते हुए, किसी आर्थिक स्थिति की न चिंता करते हुए, शिक्षा की न चिंता करते हुए, आर्थिक और भुखमरी की न चिंता करते हुए, विकास की न चिंता करते हुए, सिर्फ इस देश में एक ही चीज रह गया है कि जाति को लड़ाओ और चुनाव जीत जाओ, धर्म का नाम लो और चुनाव जीत जाओ। यह देश के लिए ठीक नहीं है। हिंदू सनातनी धर्म न कमजोर था न कमजोर होगा। पवन पुत्र के नाम पर मैं आज भी कहना चाहता हूं कि पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुभूप। सीता माता, राम और हनुमान हमारे हृदय में है। पर इसका फायदा किससे मिल रहा है? राम हनुमान का फायदा किससे मिल रहा है? और ये राजनीति धर्म की हो रही है। ये फायदा सिर्फ बंटवारा है। अब तो यह देखना है कि वहां मुस्लिम ज्यादा है या हिंदू ज्यादा है। पर मेरा मानना है उन प्रवासियों का क्या होगा। वहां 15 लाख प्रवासी जो कर्नाटका में नौकरी कर रहे हैं वो तो मुसलमान भी है और हिंदू भी है। वो पवन पुत्र को भी मानते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं। उन प्रवासियों का क्या दोष है जो भारत देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में देश को बढ़ाने के लिए अपने कर्म को कर कर राज्य के आर्थिक स्थिति में सहयोग करता है, उसका दोष क्या है? वह कैसे सफल होगा? इस भारत देश में आप देखिए, महाराष्ट्र में 27 करोड़ की जनसंख्या जिसमें 17 करोड़ प्रवासी हैं, गुजरात में 13 करोड़ की संख्या उसमें 6 करोड़ प्रवासी हैं, बंगाल में 11 करोड़ प्रवासी हैं, असम में 5-7 करोड़ प्रवासी हैं, दिल्ली में प्रवासी हैं और कर्नाटक में 15 लाख प्रवासी हैं। उन प्रवासियों का क्या होगा? किसी ने सूद ली? किसी ने सूद नहीं ली कि वो विकास में जा रहा है, उसका क्या होगा? बस अजय जी सबको अपनी राजनीति से लेना देना है। अजय जी, भारत शत्रुघ्न, बस यही चाहिए। अजय जी सबको अपनी राजनीति से लेना देना है, न प्रवासी से, न भ्रष्टाचार से, न गरीबी से, न रोजगारी से। पर सवाल यह है कि अगर कर्नाटक भाजपा के लिए साउथ का गेट है एंट्री के लिए, तो कांग्रेस के लिए कितना महत्व है इस चुनाव का? सर दिलीप जी, 2024 में चुनाव है और 2024 में जहां पर 45 लोकसभा की सीट हो, 40 लोकसभा की सीट हो, महत्वपूर्ण तो होगा ही। देखिए 224 विधायक हैं, ऐसी स्थिति में उस लोकसभा सीट को पाना है। कांग्रेस वहां हमेशा मजबूत रही है और ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीट है। अभी तो चुनाव बाकी है, अभी तो राजस्थान का चुनाव बाकी है, छत्तीसगढ़। कर्नाटक में जिस तरह मोदी जी ने कमान संभाली है, रैली रोड शो कर रहे हैं और धर्म की राजनीति भी अब हो रही है, क्या इससे आखिरी दिनों में जो मतदाता है उनका मिजाज पलट सकते हैं मोदी भाजपा? बिल्कुल पलट सकते हैं। मोदी जी के अंदर वो छवि है, मोदी जी के अंदर वो कला है, मोदी जी के शब्दों में वो जादू है कि जनता उन पर आकर्षित होती है। शायद इसीलिए अमित शाह और मोदी के नाम पर जीतने वाले सांसद मोदी शाह और अमित शाह के नाम पर जीतने वाले विधायक काम कुछ नहीं कर रहे। बस मोदी जी आ रहे हैं, चुनाव जीत जाओ। अमेरिका में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के। भारत देश का बच्चा अपने देश के प्रधानमंत्री का गुणगान करता है।
वह भारतीय जनता पार्टी, जिस दिन वह शपथ ग्रहण लेता है वह भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता, वो देश का प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री के सम्मान में मैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को तेजस्वी प्रधानमंत्री का पद भी देना चाहता हूं, मैं बताऊं, लेकिन ये क्या है, मोदी के नाम पर जीत लो और काम कुछ मत करो। क्या हो रहा है? चलो तेजस्वी प्रधानमंत्री है पर न दिल्ली में कुछ करिश्मा कर पाएगा, पंजाब में कर पाएगा। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, लेकिन दिल्ली में आज तक विजय हासिल नहीं की, अपने जमीन के नीचे हासिल नहीं की। ये उन्हीं का प्रोजेक्ट किया हुआ व्यक्ति है। अन्ना को कांग्रेस के खिलाफ लाकर अरविंद केजरीवाल का उत्पादन किया और आज गले की हड्डी बन गए। हर्षवर्धन जी, जिस तरह बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जो चुनाव में अभी फिलहाल रैलियां और सभा रैली शो कर रहे हैं, क्या लगता है कि भाजपा, कांग्रेस और तीसरा पार्टी जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जेडीएस कौन सा मतलब आप देख रहे हैं चित्र आने वाले दिनों में? क्या त्रिशंकु की आशंका दिख रही है या किसी को मतलब पूरी सत्ता मिल सकती है ऐसा लग रहा है? क्या राजकीय समीकरण देख रहे हैं आप? देखिए, अभी जैसे जो है चुनाव आगे बढ़ेगा दिलीप भाई, अभी कुछ कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अभी फिलहाल जो है अभी की स्थिति जो है उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ पर एडवांटेज में है। और ये पहली बार हो रहा है जब कर्नाटका में चुनाव येदियुरप्पा की बजाय पार्टी जो है मोदी के चेहरे को आगे कर लड़ रही है। क्योंकि आप ये देखिए, चाहे सिद्धरामैया हो, चाहे डीके कुमार हो, चाहे देवेगौड़ा हो, इनका कद जो है प्रादेशिक स्तर पर बहुत ज्यादा है और बीजेपी में येदियुरप्पा के अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं इसके जरिए एंटी इनकम्बेंसी को भी कैश करना चाहती है। और यहाँ पर बसवराज बॉम्बई से दिलीप भाई नाराजगी है, लेकिन मोदी से कोई नाराजगी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी परीक्षा है बीजेपी की, एक तरह से ऐसी टेस्ट से कमी है दक्षिण भारत के राज्य में। और अगर कर्नाटक में भाजपा चुनाव नहीं जीत पाती है तो इस साल 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में जो है चुनाव होने वाले, वहां पार्टी के प्रादेशिक छत्रपों की पूछ परख और ताकत बढ़ेगी। अगर बीजेपी यहां फतह कर जाती है, मैच जीत जाती है, तो फिर मुझे लगता है कि जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, लोकसभा चुनाव में ये परिणाम कितने असर करेंगे, क्या लगता है? देखिए दिलीप भाई, आजकल मतदाता के ट्रेंड को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो राज्यों का विधानसभा चुनाव होता है वो अलग तरीके से होता है, उसमें अलग तरह के मुद्दे होते हैं। अभी कर्नाटका की बात करें हम, देखिए राज्य के जितने भी मुद्दे हैं वो सारे तो किनारे कर दिए गए हैं, सब राष्ट्रीय विमर्श, राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव। और आप देखिए कि बीजेपी की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर जब मतदान होता है लोकसभा का, तो उसमें उनका जो वोट का परसेंट है वो भी बढ़ता है और वोट का शेयर भी बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है उसमें मुद्दे अलग होते हैं। तो अभी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 2024 बहुत दूर है अभी फिलहाल। बिल्कुल। अच्छा जी, लास्ट में क्या कहेंगे, कौन सा चित्र देख रहे हैं आप ये चुनावी राजनीति में कर्नाटक में? 36 से 56 इंच का सीना नरेंद्र मोदी को हराने के लिए अभी बहुत वक्त लगेगा विपक्ष को। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे यह तय हो चुका है, क्योंकि जो गेम कांग्रेस ने किया वो बहुत गलत किया है। किसी भी संगठन पर बैन लगाने की बात करना, वो भगवान से जुड़े हुए बैन पर बात करना, यह ठीक नहीं है। बजरंग दल का कोई व्यक्ति अगर गलत है तो उसे गिरफ्तार करो, उसे मारो, उसे तोड़ो, लेकिन बजरंग दल पर लगाकर कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। और अगर कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी सक्सेस होती है तो आप तय मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी को पूरे भारत में फिर से प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलो बिल्कुल, કર્ણાટકની ચૂંટણી છે, બહુ જ અગત્યની છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે સાઉથના દ્વાર ખુલે છે કે કેમ એમાં જોવાનું રહેશે. જે પ્રમાણે વાત થઈ કે બીજેપી માટે સ્થાનિક લીડર જે અત્યાર સુધી યેદિયુરપ્પા હતા, પરંતુ હવે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આ કમાન સંભાળી લીધી છે, એટલે એન્ટી ઇન્કમ્બન્સીનો જે ડર હતો એ કદાચ દૂર થઈ શકે છે. અને ખાસ તો શિક્ષણ, આરોગ્ય, ભ્રષ્ટાચાર, આ બધા જ મુદ્દા, બેરોજગારી, આ બધા જ મુદ્દા સાઈડમાં રહીને હવે જ્યારે ધર્મની રાજનીતિ પર આખી ચૂંટણી કર્ણાટકની આવી છે ત્યારે જોવાનું કે બોલવાની અને લખવાની આઝાદી છે, પરંતુ ભગવાનના નામે, ધર્મના નામે રાજનીતિ અને જાતિ આધારિત ચૂંટણી ક્યાં સુધી ભારત દેશમાં લડાશે એ પણ એક સવાલ છે. અને બીજું કે કર્ણાટકની ચૂંટણીના પરિણામ 10 તારીખે જ્યારે મતદાન થશે ને 13 તારીખે પરિણામ આવશે ત્યારે કોનો પરચમ લહેરાય છે અને 2024 લોકસભાની ચૂંટણીમાં આ પરિણામો કેટલા અસર કરશે આવનારો સમય બતાવશે. ચર્ચાનું સમાપન કરીએ છીએ. ચર્ચામાં ભાગ લેવા બદલ हर्षवर्धन पांडे और डॉक्टर अजय तिवारी दोनों उपस्थित रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू. તો દર્શક મિત્રો, લોકમંચ કાર્યક્રમમાં હતી આજની ચર્ચા. ફરી મળીશું નવી ચર્ચા સાથે. આપ જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ. નમસ્કાર.